بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کو الف ب حروف تہجی اردو کا تعارف ہم کروا چکے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے چھوٹی اشکال اور ان کا استعمال جو ہے وہ شروع کروایا ہوا ہے، کیونکہ یہ اردو کے بیسک اصول ہیں، بنیادی اصول ہیں، اور ان کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کو سمجھیں گے تبھی آپ الفاظ کو آپس میں جوڑنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو آج ہم لوگ جو چھوٹی اشکال ایک جو ہے پارٹ 1 ہم پیش کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر لکھا ہوا ہے حروف، دوسری جگہ لکھا ہوا ہے چھوٹی اشکال، اور تیسری جگہ لکھا ہوا ہے بھاری شکل یا بھاری حروف۔ تو بھاری حروف جو ہے یہ انہی حروف کے جو ہے لکھے گئے ہیں، لیکن ان کو ہم بعد میں کریں گے۔ آج ہم لوگ ابھی کریں گے چھوٹی اشکال اور ان کا استعمال۔ تو لام جو ہے، لام کی چھوٹی شکل جو ہے وہ دو طرح سے آتی ہے۔ ایک تو لام اس طریقے سے آتا ہے اور زیادہ تر استعمال بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور اس طرح کا لام جو ہے اس کے ساتھ الف بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً فرض کریں آپ لکھ رہے ہیں لاہور، تو لاہور میں لام الف لا اور ہو اور رے، اس طریقے سے لام کی چھوٹی شکل آئے گی۔ اور اگر آپ لکھ رہے ہیں جس میں لام الف لا نہیں آ رہا، وہ لفظ ہوگا مثلاً لوہا، تو لام جو ہے یہ اوپر سے شروع ہوگا کیونکہ آگے ہم نے واو لکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں تک جو ہے یہ لام کی چھوٹی شکل ہے جو کہ ہم نے یہاں تک لکھی ہے، اور اس کے بعد لوہا ہم اس لفظ کو جو ہے یہ پورا کریں گے، اس طریقے سے آپ کا یہ لفظ جو ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا اگلا لفظ ہے میم۔ میم جو ہے سب سے پہلے ہم نے آپ کو لکھنا بھی سکھایا تھا کہ میم جو ہے وہ کس طریقے سے لکھنا ہے۔ آپ نے ایک چھوٹی سی ٹرائی اینگل ڈالنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی کو جو ہے یہ دیکھیں جہاں پہ بھی آپ نے ایسے ہی کیا لکھا ہوا ہے چھوٹی شکل کو۔ اب فرض کریں ہم لکھ رہے ہیں مور، تو میم کے ساتھ ہم نے واو ڈالنا ہے اور رے ڈالنا ہے۔ جو بھی لفظ جب اگر یہاں پہ واو آ رہا ہے، رے آ رہا ہے یا دال آ رہا ہے، تو وہ لفظ کی جو چھوٹی شکل ہے وہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوگی، وہ ساتھ نہیں شروع ہوگی۔ اور اگر لفظ جو ہے وہ آگے بے کے ساتھ لگ رہا ہے تو پھر آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں گے جہاں سے آپ کے میم لکھا گیا ہے۔ تو میم زیادہ تر اوپر سے ہی شروع کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے زیادہ تر الفاظ اسی طریقے سے ہیں۔ تو ہم نے لکھا ہے مور، اس وجہ سے لفظ جو ہے یہ اوپر سے شروع کیا گیا ہے۔ لیکن فرض کریں اب آپ نے لفظ لکھنا ہے مارا، میم کے ساتھ الف آ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ یہاں سے ہی میم سٹارٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ میم کی چھوٹی شکل ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ الف ڈال دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ رے ڈال دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ الف ڈال دیں گے۔ اس طرح لفظ بن جائے گا مارا۔ یعنی کہ واو، رے اور دال کے ساتھ جب لفظ لکھنا ہے تو اوپر سے سٹارٹ کرنا ہے، لیکن اگر الف کے ساتھ یا بے پے کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ نے لفظ جو ہے وہ بالکل لائن کے قریب سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے نون۔ نون جو ہے، نون کی بھی چھوٹی شکل اسی طرح سے ہے جس طرح بے پے اور تے کی آتی ہے، جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو اب اگر ہم نے فرض کریں لفظ لکھنا ہے نازک، تو نون کے ساتھ الف آنا ہے، تو یہ آپ نے یہاں پہ نون کی چھوٹی شکل ڈال دی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اب الف کو پورا کرنا ہے، تو آپ نے یہاں پہ الف ڈال دیا۔ اس کے بعد زے لفظ آ گیا، اور زے ہم نے آپ کو پہلے بھی لکھنا سکھایا تھا، یہاں سے آپ نے الف ڈال کے یہاں تھوڑا سا اس کو اونچا رکھنا ہے۔ اور نازک میں جب آپ نے کاف ڈالنا ہے، کاف ہم نے پہلے بھی آپ کو سکھایا تھا، کاف کی ایک سائڈ آپ نے بڑی رکھنی ہے، اور اس کے بعد ڈنڈا جو ہے اس کا ساتھ اس کے ہمیشہ آپ نے جوڑنا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ آپ کا آ جاتا ہے سین۔ سین لفظ ہے، سین لفظ کا یہ چھوٹی شکل ہے۔ اسی طرح سین کے بھی الفاظ ہیں کہ اگر تو آپ اس کے ساتھ واو، دال یا زے کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر سین جو ہے وہ تھوڑا سا اونچائی سے لکھا جائے گا، کیونکہ فرض کریں آپ نے لکھنا ہے سوکھا، تو میں نے پہلے یہاں واو ڈال دیا ہے، تو واو تو لائن کے اوپر آتا ہے، اب آپ نے سین کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، تو ظاہر ہے سین آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ نے سین کو یہاں سے سٹارٹ کیا اور اس کو ساتھ اس کے جوڑ دیا، تو اس طرح سے یہ سوکھا لفظ جو ہے یہ آپ کا میم کے سین کے ساتھ جو ہے یہ آ گیا۔ جب بھی آپ نے دو آنکھوں والی ہے کا بھی ہم اصول بھی آپ کو بتائیں گے، اس کے ساتھ لکھنا ہے آپ کا یہ والا الف والا حصہ تھوڑا لمبا ہونا چاہیے، اور یہ والا حصہ جو ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہونا چاہیے۔ لیکن اب فرض کریں آپ سین کی چھوٹی شکل کے ساتھ جو ہے
दूसरा लफ्ज लिखना चाह रहे हैं, ये वाव है इस वजह से सीन ऊपर से आ रहा है। अब अगर आप अलिफ के साथ लिखना चाह रहे हैं, मसलन आपने लिखना है सांप, तो ये आपका लाइन के साथ ही आएगा, दंदाने हल्के से ऊपर आएंगे और इस तरीके से आप ये नून की छोटी शक्ल डालेंगे। नून की छोटी शक्ल यहीं खत्म हो जाती है, जो जो अगली है ये पे की पूरी शक्ल है, तो इस वजह से आपने पे पूरा डालना है, इसलिए आपको नून को यहाँ पे उठाना पड़ता है, जिसको हम दंदाना भी बोलते हैं। इस तरह से सीन से सांप और सीन से सूखा बन जाता है। उसके बाद अगला लफ्ज है आपका शीन। शीन के साथ लफ्ज अगर आपने लिखना है तो फर्ज करें आप लिख रहे हैं शेर, तो शेर के साथ भी रे आता है, इसलिए आप शीन को उठाकर लिखेंगे, यानी कि शीन के दंदाने जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, फिर ये आएगा और दंदाना आएगा और फिर इसके साथ ही आपका रे आ जाएगा। इस तरीके से आपका शेर लफ्ज जो है वो आएगा। लेकिन अगर आप शीन को अलिफ के साथ लिख रहे हैं तो उसी वही असूल है जो यहाँ सांप के साथ है। मसलन हमने लिखना है लफ्ज शाख, तो हम पहले सीन को इस तरीके से डालेंगे और इसके ऊपर 3 नुक्ते डालेंगे और इसके बाद खे हमने क्योंकि पूरा लिखना है तो इस तरीके से हम शाख लिखेंगे। यहाँ पे हमने शीन के दंदाने नीचे डाले हैं, यहाँ क्योंकि साथ रे आना था इस वजह से शीन जो है इसको हम ऊपर लेके गए हैं। उसके बाद आपका अगला लफ्ज है स्वाद। स्वाद लफ्ज जो है इसके भी कुछ असूल हैं जो कि हम एक मुकम्मल वीडियो में आपको बताएंगे कि कहाँ पर स्वाद के साथ आपने दंदाना लिखना है और कहाँ पर नहीं लिखना। जब भी स्वाद का लफ्ज जो है रे के साथ आएगा तो इसका आप दंदाना नहीं डालेंगे। मसलन आपका लफ्ज है सबर, स्वाद और ये जो चीज है ये बे है और आगे है रे, इस तरीके से सबर लफ्ज जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्वाद को जो है अलिफ के साथ या किसी और हरफ के साथ लिखना है, अगर ये सबर है और अब हम लिख रहे हैं सबा, तो सबा में आप एक दंदाना जो है यहाँ तक स्वाद पूरा होगा आपका, जबकि यहाँ पे हमने स्वाद को यहाँ पे ही छोड़ दिया, इसका कोई दंदाना नहीं बनाया। यहाँ पर आप पूरा दंदाना बनाएंगे, ये बे का दंदाना है और ये अलिफ का दंदाना है। यहाँ पर इस तरीके से सबा लफ्ज जो है ये पूरा होगा, जो कि अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सबा लफ्ज जो है ये इस तरीके से लिखते हैं, जबकि ये लफ्ज जो है ये बिल्कुल गलत है और ये वाला जो है ये ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज है आपका ज्वाद। ज्वाद के साथ आपका लफ्ज जो है हम लिखने लगे हैं वो है जब्त। अब जब्त लफ्ज में रे नहीं आ रहा और ना ही दाल आ रहा है, इस वजह से जब्त लफ्ज हम किस तरीके से लिखेंगे ये जहन में रखें। आपके ज्वाद की ये वाली जो शक्ल है ये थोड़ी लंबाई में आएगी। यहाँ पे जब्त, ये यहाँ तक ज्वाद कंप्लीट हो गया और ये आपका बे का दंदाना आ गया और उसके बाद आपने ये आपका तोए का दंदाना आ गया। इस तरीके से आपका जब्त लफ्ज जो है ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका अगला हरफ है तोए। तोए के साथ जो है लफ्ज हम लिखने लगे हैं तोता। तोता लफ्ज है क्योंकि वाव आना है, जैसे ये पहले हमने आपको सिखाया, अब ये क्योंकि वाव आना है तो पहले आप वाव लिख लें। इस वजह से लिखेंगे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ से हमने लफ्ज को कितना उठा के लिखना है। अब यहाँ से आपने तोए को तोए लिख दिया, ये तोए की छोटी शक्ल, साथ आपने वाव लिख दिया, आपका तो बन गया और उसके बाद आपने तोता लिखना है। अब आपने तोए पूरे का पूरा लिख दिया और तोए के साथ आपने अलिफ लगाना है, तो ये आपका लफ्ज बन जाना है तोता। इस तरीके से तोए का लफ्ज जो होता है ये, चाहे आप यहाँ पर देखें, यहाँ आप छोटी शक्ल देख लें तब भी तोए वैसा ही है, अगर आप बड़ी शक्ल देखें तब भी तोए वैसा ही है। उसके बाद आपका लफ्ज आ जाता है आइन। आइन लफ्ज को भी दो तरीके से लिखा जाता है। अगर तो आइन जो है ये आपके लफ्ज के शुरू में आता है तो फिर आप किस तरीके से रखते हैं। मसलन आपने लफ्ज लिखना है ऐनक, तो आइन की ये वाली शक्ल आएगी, ये वाली। अब आइन ए, आइन ये और नून और आगे से आपका ये काफ, तो ये बन जाएगा ऐनक। और अगर आपने आइन को दरमियान में लेकर आना है तो फिर आइन की ये वाली शक्ल आएगी। मसलन आपने लिखना है लफ्ज बाद। अब आप ये देखें आइन की इस शक्ल में और इस शक्ल में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे आइन खोलकर बयान किया गया है
और यहाँ आइन दरमियान में आया है, इस वजह से आइन की ये वाली शक्ल, ट्राइंगल वाली शक्ल जो है ये आएगी। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका आइन जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा जाएगा। अब हम फे की छोटी शक्ल देखेंगे। फे की छोटी शक्ल इसी तरीके से आएगी। हाफ फे आप लिखेंगे। फे से अगर हम लफ्ज बना रहे हैं, फर्ज करें फुटबॉल, तो हमने फे के साथ यहाँ तक फे का लफ्ज जो है ये छोटी शक्ल और आगे टे पूरे आ गया, और उसके बाद हमने लिख दिया फुटबॉल। और अगर हमने लिखना है फवारा, वाव के साथ आएगा। पहले की तरह असूल बता रही हूँ आपको, पहले हम वाव डाल लेंगे ताकि आपको पता लगे कि फे। अब यहाँ पे हमने सिर्फ फे की छोटी शक्ल डालनी है। ये देखें, इतनी आपने डाली तो फे वाव फो खुद ब खुद बन गया। यहाँ पे हमने फे का नुक्ता डाला और यहाँ पे लफ्ज बन गया फवारा। उसके बाद आप देखेंगे काफ की छोटी शक्ल। काफ की छोटी शक्ल जो है वो इसी तरीके से आ जाएगी। अब काफ के साथ जो हमने लफ्ज लिखना है, मसलन हम लिख रहे हैं किल्लत। किल्लत का मतलब होता है कमी। अब किल्लत लफ्ज जो है ये आपका लाम के साथ, यहाँ तक आप देखें काफ की छोटी शक्ल है, ये आपकी लाम की छोटी शक्ल आ गई, और उसके बाद आपका ते जो है ये पूरे का पूरा आ गया, तो इस तरह लफ्ज बन गया किल्लत। उसके बाद आखिरी लफ्ज जो है वो आपका है हे। हे गोल हे होती है, लेकिन जब आपको लफ्जों के साथ जोड़ के लिखना है तो हे की शक्ल ये हो जाती है। मसलन आपने लफ्ज लिखना है हारा, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। आप ये गोल हे नहीं डालेंगे, बल्कि ये आपने जब यूं डाल दिया तो ये आपका हारा लफ्ज बन गया। और मसलन अब आपने होना लिखना है, होना, तो होना में भी आपने ये देखें यही शक्ल हमने डाली है और उसके साथ वाव आ गया और उसके बाद नून अलिफ ना आ गया। इस तरीके से आपके ये लफ्जों की ये है कि याद रखें कि छोटी शक्ल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह आइन की छोटी शक्ल दो तरह से है, यहाँ से आ जाती है, जबकि तोइन की लफ्ज जो है उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी की वैसी है। जुआद में जब लफ्ज रे के साथ आएंगे तो उसके दरमियान जो है दंदाना नहीं आएगा, लेकिन जब ज़ुआद किसी और लफ्ज़ के साथ आएगा तो उसका ये दंदाना जो है ये लाजमी आएगा। इस तरह से आज हमारी जो है अलिफ बे पे की जो छोटी अशकाल हैं ये हमने कर ली हैं। नेक्स्ट आपको भारी अल्फाज और भारी हरूफ जो है वो सिखाए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको उर्दू सिखाई जा रही है, तो आपको आपको उर्दू के अल्फाज जोड़ने में और उर्दू लिखने में बहुत आसानी हो। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद डिटेल के साथ नेक्स्ट लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।